So we started with law, right, related to demand function. First we understood what do you mean by demand. Demand is the various quantities of a particular goods or service that a buyer is willing to buy at a various level of prices, various level of incomes, various level of prices of other goods or other determinants. So that is called as demand. In economics, whenever I talk about demand, whenever you listen the word, right, demand in economics, it means, right, you are talking about effective demand. And there are three components of the effective demand: desire, backed by, right, ability to purchase the goods, purchasing power, and third, right, willingness to spend that purchasing power, right? So desire plus ability plus willingness, three comes together makes demand. If any of the three components is missing, that does not, right, be called as effective demand or demand in the economics. Then we learn, whenever we talk about any function, function is a relationship between the two variables. Any function is a relation between the two variables. In case of demand function, like example demand function is a relationship between the determinants of demand and quantity demanded. Supply function is a relationship between the determinants of supply and the quantity supplied. Cost function is a relationship between the inputs, right, factors of production and the cost. Cost and various things which determine the cost, that is factors of production determines the cost. When I talk about production function, it's inputs and production ki relationship. When I talk about revenue function, it is output and income ki relationship. So any function is basically a relationship. Any function is a relationship between two variables. One of the variable is independent variable which decides which, right, like dependent variable. Like in case of demand function, the determinants of demand are independent variable and demand, quantity demanded, is dependent variable. So quantity demanded depends on what, right, the determinants of demand. And there are multiple determinants जो हम अभी discuss करने वाले हैं. First determinant हमने देखा था price of the commodity itself. First determinant is price of the commodity itself. So price of the commodity decides the demand for the commodity. What do you mean by this? So if price increases, quantity demanded decreases, price decreases, quantity demanded increases. This inverse relationship, this, right, inverse relationship is a, right, plotted. If plotted on a graph, you will get downward sloping demand curve. Actually, this is a demand curve. So it is a, right, slope of the curve is a negative. It is a downward sloping curve and talks about the relation between the price and its demand. Price of the commodity and the quantity demanded of the same commodity. However, whenever I say, right, price changes the quantity demanded, price of the commodity changes the quantity demanded of the commodity, I mean, right, there are two effects behind that. Right, that is substitution effect, and second one is, right, your income effect. क्या बोला मैंने? एक substitution effect and दूसरा होता है income effect. Substitution effect मतलब क्या? As price increases, price of our commodity increases, it becomes costlier as compared to other commodities, and some of our customers will shift and they will purchase the other commodity, resulting in decrease in demand of my commodity. So मेरी price increase होने से मेरी demand decrease होती है, because customers shift to other commodity. That effect is called as substitution effect. या if right, मेरे commodity की price decrease होती है,
तो it becomes relatively cheaper to other commodities. Relatively cheaper मतलब पहले से now it is relatively cheaper, and therefore some of the customers will shift to my commodity. They will start demanding my commodity, and therefore demand for my commodity increases. मेरी प्राइस डिक्रीज होने से मेरी डिमांड इंक्रीज हो रही है, राइट? बाकी कस्टमर्स मेरी कमोडिटी परचेस कर रहे हैं. दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Substitution effect is applicable for those commodities which have substitutes, maybe close substitutes, not very perfect substitute, but yes, at least substitutes honi chahiye. Like in case of very high value goods or the commodities which do not have near substitutes, close substitute, like diamond, high end vehicles, high end electronic gadgets, उनके केस में there are no close substitutes, and therefore right, उनके केस में substitution effect is almost zero. And दूसरा होता है income effect. Income effect मतलब क्या? When the price of the commodity increases, now I can buy less quantity with the same income. मैं income change नहीं कर रहा हूं, मेरी real income उतनी है, मेरी disposable income उतनी है. What is disposable income? It is your gross income minus taxes. Gross income कहां पे तो ऊपर लिख लेना, disposable income is equal to your income minus taxes. So what is at your disposal? आप क्या खर्चे कर सकते हो, टैक्स कट होके आपकी इनकम रहेगी, बराबर. So net of tax is your disposable income. Disposable income remains same. However क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होने से my purchasing power decreases, because with the same money income now I can buy less of the commodity and therefore demand decreases. या चीजें सस्ती होने से with the same money income I can buy more, उसको बोलते हैं purchasing power increase हो गई. So right, I simply mean right, this is purchasing power effect. income effect की बात कर रहा हूं मैं. So income effect is for every commodity, let it be right high value commodities, any commodity. एक बार substitution effect नहीं होगा, but income effect definitely होगा. Try to understand, income effect हमेशा रहेगा. So substitution effect plus income effect together it is called as price effect. So जो हम law of demand में सीखे कि as other things being constant, price increases, demand decreases, and vice versa, actually we are learning negative price effect. क्या सीख रहे थे हम लोग? Negative price effect. आगे next. Okay, I will income effect वगैरह no income effect के केस में try to understand income effect, right? Sayyam is asking me, sir income effect को कोई exceptions है क्या? Try to understand, income as a determinant of demand is different and income effect is different. अभी हम आगे जाएंगे तो clear हो जाएगा, ध्यान देना. So एक बोला substitution effect, दूसरा बोला income effect, that is the first. ठीक है? And this is which? This is demand curve ना? This is demand curve. Demand curve is also called as, लिख लेना, average revenue curve. Curve of seller. Demand curve is also called as average revenue curve of the seller. Demand curve को क्या बोला जाता है? Average revenue curve. Why? मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना. Very logical है. अब ये जो चीजें मैं समझाऊंगा ना, ये आपने कभी ऐसे नहीं कि आपको पता नहीं थी, बट कभी हमने वैसे उस एंगल से इकोनॉमिक्स को देखा ही नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. एवरीबडी नोज डिमांड कर, यहाँ पे जितने लोग अटेंड कर रहे हैं ना, एवरीबडी नोज डिमांड कर, बट कभी किसी ने ऐसे देखा क्या उसको? लाइक दिस इज योर डिमांड कर. ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. दिस इज सपोज 1 2 3 4 5 price. This is price axis, right? Price per unit. Price per unit. Y axis is a price per unit and X axis is a quantity. 1 rupee, 2 rupees, 3 rupees, 4 and 5. Yet you can take like 10 rupees, 20 rupees, 30, 40, 50.
मैंने सिंपल रखा है मेरे कैलकुलेशन इजी पर्पस के लिए. When, right, when price is 1, yeah, suppose when price is 5, demand is very less. Demand is, ध्यान देना, I will try to plot the graph. ठीक है, demand is example for 100 units. बराबर? When price is 4, demand increases to 200 units. When price is 3, demand increases to 300 units. When price is 2, demand increases to 400 units. And when price is 1, demand increases to 500 units. So, मुझे कुछ तो ऐसे लेना होगा. ठीक है, देखते हैं. अच्छा, थोड़ा इसका रुको, मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूं. ठीक है, लाइक दिस. देखते हैं. यू कैन उतना समझ लेना. ठीक है, देखते हैं. 100 to 100. अच्छा अच्छा, बराबर है. वो एक जगह पे मैंने मिस किया. देखो, लाइक दिस. So 100, 200, 300, 400 and 500. This is one point. This is another point. This is third point. This is 4 point, fifth point. पहली तो बात. अच्छा, स्लो चल रहा है थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अकॉर्डिंगली मुझे एडजस्ट करना होगा. ध्यान देना. Now, try to understand why it is called as average revenue curve. If you remember, what is the formula of total revenue? What is the formula? Total revenue मतलब sales. Total revenue is equal to can I say my total revenue is equal to quantity sold or quantity demanded multiply by और डिमांडेड. आपको जो या आपका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ऐसे बोलो. ठीक है, डिमांडेड मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट. बराबर? डोंट यू एग्री विथ मी? प्राइस पर यूनिट, दैट इज द टोटल रेवेन्यू. देखते हैं. ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू इज क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय व्हाट? योर प्राइस पर यूनिट. बराबर? अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. व्हेन प्राइस इज ₹5, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. व्हेन प्राइस इज ₹5, quantity demanded is 100. So what is your total revenue? This area is your total revenue. ये जो एरिया है ना, this is your total revenue. That is 500 rupees is a revenue of a seller. Suppose this is a demand curve faced by a seller for his product. उसकी, it is not an individual demand curve. It is a demand curve of multiple buyers who are buying a commodity from a particular seller. I am a seller and मेरे 10 buyers हैं, and अगर मैं उनकी अलग अलग प्राइजेस पे उनकी डिमांड प्लॉट करता हूं तो मुझे ये डिमांड कर्व मिल रही है. सो दिस इज अ डिमांड कर्व फेस्ड बाय ए सेलर. तो जब प्राइस इज 5 per unit, quantity demanded is 100, his revenue is 500. His revenue is 500. This is 1. So आप मल्टीप्लीकेशन देखो. This is your x axis, this is y axis. So x multiplied by y is your total revenue. So try to understand, any curve shows area. कोई भी curve ले लो and join the x axis and y axis, you will get an area. So demand curve gives you total revenue. When the price is 5, 100 units are demanded, total revenue is 500. अगर आप as a customer देखते हो, suppose this is your demand curve, you are not seller, you are a customer, then this is your expenditure, because someone's expenditure is someone's income. Don't you agree with me? अगर आप एक कस्टमर की डिमांड कर बोलते हो तो दिस इज जो मैंने अभी एरिया हाईलाइट किया है,
That is the total expenditure when price is 5 per unit. If price is, example, 3 per unit, so what will be your expenditure for buyer and income for seller? So when price is 3, quantity demanded is 300. Therefore, your revenue, seller के लिए revenue 900 होगा and buyer का expenditure कितना रहेगा? Right, 900 रहेगा. So now this area, जो मैं green से highlight कर रहा हूँ, this is your total revenue area. Try to understand. डिमांड कर्व बहुत बार देखी, बट ये कभी सोचा नहीं कि डिमांड कर्व गिव्स यू एक्सपेंडिचर फॉर बायर एंड इनकम फॉर सेलर. एंड व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? अगर आप एवरेज रेवेन्यू ढूंढते हो, एवरेज रेवेन्यू आपके एवरेज मार्क कैसे ढूंढते हो आप? टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट. नाउ दिस इज योर टोटल रेवेन्यू. if I have to find out average revenue, how will I find out total revenue divided by quantity sold? This is your average revenue. What is average revenue? Revenue per unit. Suppose example, मेरा total revenue 10 लाख है and the quantity sold is example 2 lakhs. So आप क्या बोलोगे? 5 per unit, price per unit is 5, जिसको बोला जाएगा एवरेज रेवेन्यू. सो एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस. कहां पे? तो ऊपर लिख लेना, एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस. एंड इफ यू रिमेंबर, राइट, दिस इज नथिंग बट एवरेज रेवेन्यू कर्व. डिमांड कर्व इज एवरेज रेवेन्यू कर्व. अगर आपकी डिमांड, राइट, व्हेन प्राइस इज 1, you buy, right, 500 units, you buy 500 units. So आपके लिए एक्सपेंडिचर कितना रहेगा? आपके लिए एक्सपेंडिचर रहेगा 1 multiply by 500. This is 1, this is multiply by 500. Your expenditure is 500. Your expenditure is 500. या अगर ये सेलर की डिमांड कर्व है, द सेलर उसके प्रोडक्ट के लिए डिमांड कर्व फेस कर रहा है, उसकी इनकम 500 होगी. Income of someone is an expenditure of someone, or expenditure of buyer is the income of seller. So demand curve is nothing but it gives you total expenditure for buyer and total revenue for a seller. लिख लेना, demand curve, area below the demand curve, area below the demand curve, ये वाला area is, area below the demand curve is total expenditure for buyers and total revenue for seller. Area below the demand curve is total expenditure for buyer and total income or total revenue for seller. Important term hai, try to understand. Everything, every graph gives you something more than what you see in it. So demand curve gives you total revenue for seller. Okay? And therefore demand curve is called as what? Total revenue, sorry, average revenue curve. And total मतलब area होता है. Whenever you talk about total, it is an area. And area मतलब क्या? L multiply by H. L multiply by H, बराबर ना? तो वही तो मैं कर रहा था. आगे नेक्स्ट, आगे चलते हैं. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग. नाउ इसलिए मैंने लिखा यहां पे इट इज ए एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर द सेलर. आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. Price of substitutes. Next important determinants of demand is a price of substitute. And you remember, right, what is the relationship? Is it a positive relationship or negative relationship? कोई मुझे बोलेगा क्या? Can anyone tell me, right, price of, yeah, right, if price of the commodity, price of substitute
price of substitute and quantity demanded of a commodity. What is the relationship? Is it positive relationship or negative relationship? Yes, please ping me. Is it positive relationship or negative relationship? There is a direct relationship, positive relationship. Okay. ध्यान देना क्या है? Example, you can always go for like coffee and tea is the best example to understand. They are close substitutes. They are substitutes, right? What do you mean by substitute? Substitutes is an alternative good. It is a competing good, right? Which satisfies the same want, same need. All those goods which satisfy same want or same need is called as substitute good. Now, right, when the price, example, I am dealing in the tea, मैं tea की demand ढूंढ रहा हूं, and if the price of the coffee changes, will it impact the demand of tea? Definitely, because they are related goods, they are substitutes, because both satisfy the same need, same want of the consumer. Now, if price of the coffee increases, substitute की price increase होगी, तो कॉफी महंगी हो जाएगी. And some of the consumers who initially used to buy coffee will start buying our commodity, which is tea, and the demand for tea will increase. Even if price of the tea is same, still demand of the tea increases. So दोनों same direction में move कर रहे हैं. So it is a direct relationship, positive relationship. Similarly, if price of the coffee decreases, it will become relatively cheaper. पहले से तो cheap रहेगी. And in that case, some of the consumers who used to buy my commodity tea will shift and will start buying, right, price of, right, they will start buying coffee, and my demand will decrease. Whenever two variables moves in the same direction, positive slope रहता है, direct relationship रहता है, right? If they move opposite, it is an indirect relationship. And therefore, can I say this is my graph? ध्यान देना, this is my graph. So this is quantity demanded of my commodity X, and this is price not of the X but price of Y. Price of Y, try to understand. अगर यहाँ पे price of X होता and quantity demanded of X है, तो डायग्राम ये है. देखो, quantity demanded of X and quantity price of X, that is law of demand और price effect. यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? Quantity demanded of X depends on the price of Y, and suppose they are substitute, then there is a positive relationship like this. Means when price of coffee is suppose 10 rupees, demand for my tea is example 2000 units. If price increases to 15, price of coffee increases to 15, demand for my red tea increases to 2500. या उल्टा देखो. So let me अलग इससे दिखाता हूं मैं, तो जल्दी क्लिक होगा. ठीक है? So if price increases, price of substitute increases, quantity demanded of my commodity also increases. However, if price of substitute decreases, suppose पहले 15 था, price of my substitute was 15, तब मेरी demand 2500 थी. Now, right, the price decreased to 10, उसकी price 10 हो गई, वो सस्ता हो गया. Now my demand decreases to 2000. This is a graph of substitutes. So I will say X and Y are substitutes. एग्जाम में ग्राफ दिया जाएगा like this, उसमें वैल्यूज वगैरह नहीं रहेंगे, खाली quantity demanded of X on X axis, price of Y on Y axis, and they will ask, and positive slope रहेगा. X and Y are which kind of goods? They are substitutes. X and Y are substitutes.
and the relationship is a positive. Try to understand. Their relationship, दो variables है, कौन कौन से, price of substitute and quantity demanded of my commodity. उनका relation positive है, therefore their cross elasticity is also positive. Is positive. क्या बोला, ध्यान देना. Relation price of the substitute and quantity demanded of my commodity has a positive relationship. Therefore, cross elasticity, you know cross elasticity. तो मुझे ऑब्वियसली हम अलग से करेंगे, बट मैं वर्डिंग जब यूज करता तो क्लिक होना चाहिए. इज पॉजिटिव. देन आगे, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अब मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं और आपको मुझे बोलना है एग्जांपल. ठीक है. प्राइस ऑफ टी, quantity demanded of tea and quantity demanded of coffee. ठीक है. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. When price of tea is 10, quantity demanded of tea is 100 and quantity demanded of coffee is example 60. If price of the tea increases to rupees 12, price of tea increases to 12, it will impact demand of tea as well as demand of coffee. Demand of tea will decrease to suppose 80 cups of tea and coffee की demand increases to 75. Try to understand. Now मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. Right? Quantity demanded of coffee, quantity demanded of tea लिखता हूं पहले. Quantity demanded of tea. यहाँ पे ये जो टी की प्राइस या टी की प्राइस चेंज होने की वजह से टी की खुद की क्या हो रही है, राइट, डिमांड कम हो रही है. खुद की डिमांड कम हो रही है. क्यों? बिकॉज देयर आर सम कस्टमर्स, राइट, जो शिफ्ट हुए कॉफी के लिए. देखो आपके कितने कस्टमर्स कम हो गए, 20 कस्टमर्स आपके कम हुए. और यहाँ पे कितने कस्टमर्स इंक्रीज हो गए, 15. मे बी ऐसे होंगे, कोई ऐसे कस्टमर्स होंगे जो चाय पीना ही बंद कर देंगे, लाइक दैट. ऑलमोस्ट 5 कस्टमर्स एंड 15 कस्टमर्स कॉफी पे शिफ्ट हो गए, ऐसे पकड़ के चलो. एंड 5 कस्टमर्स बोलते कि ये महंगा है, हम नहीं लेंगे. मे बी कॉफी की प्राइस उससे भी महंगी रहेगी, टी से भी महंगी रहेगी, बट पहले जो डिफरेंस होता था कॉफी एंड टी के प्राइस में, अब वो कम हो चुका है बिकॉज टी की प्राइस इंक्रीज हुई है. नाउ रिलेटिवली टी हैज बिकम, राइट, रिलेटिवली कॉफी हैज बिकम चीपर पहले से. So some customers have started buying coffee and some customers obviously have started buying less of tea. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. यहां पे टी के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है. टी के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है. टी की डिमांड डिक्रीज हो गई, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट है ऑब्वियसली. बिकॉज हमारी खुद की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आर कमोडिटी रिलेटिवली कॉस्टलियर हो जाती है एंड सम कस्टमर शिफ्ट टू अदर सब्स्टिट्यूट. एंड अगर आप क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी की बात करते हो, इफ आई एम ए टी सेलर, मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है. इफ आई एम ए टी सेलर और मेरी खुद की प्राइस चेंज हो गई, टी की प्राइस चेंज हो गई, तो मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पिक्चर में आ गया, इनकम इफेक्ट पिक्चर में आ गया. बट जो कॉफी सेलर है, ही इज एट सरप्राइज, अरे अचानक से उसके कस्टमर्स इंक्रीज हो गए, इवन दो ही डिडंट चेंज द प्राइस. उसकी प्राइस, कॉफी की प्राइस सेम है, टी की प्राइस चेंज हुई है, फिर भी उसकी डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है. दिस इज बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिटर्मिनेंट. I will say, right, this is determinants of demand. So for tea seller it is substitution effect, and for a coffee seller it is, right, price of the substitute changes and therefore
वो महंगा होने की वजह से मेरी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये माइन्यूट डिफरेंस है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग एंड सब्स्टिट्यूशन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड अलग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में सब्स्टिट्यूट की प्राइस चेंज नहीं होती है, आपकी प्राइस चेंज होती है एंड इसकी वजह से लोग उधर जाते हैं या उधर से इधर आते हैं. प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट चेंज होगा तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पिक्चर में नहीं आता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दूसरे की प्राइस चेंज होती है, उसकी वजह से मेरी डिमांड चेंज होती है, वो है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. मेरी खुद की प्राइस चेंज होती है इसलिए कस्टमर मेरे से जाते हैं या मेरे पास आते हैं. दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस एग्जांपल जो टी सेलर है उसके लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पिक्चर में आ रहा है एंड जो कॉफी सेलर है उसके लिए प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट चेंज हो रही है, इसकी वजह से उसकी डिमांड चेंज हो रही है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज डिफरेंट which is a component of the price effect which is because of the change in the own price, and price of the substitute is totally different. वो effect पूरा अलग है. try to understand, वो determinant है. next, ठीक है. दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूं, ध्यान देना. suppose so even a decrease in the difference of the price between substitute, obviously वही तो मैं बोल रहा हूँ ना. सपोज पहले कॉफी की प्राइस 10 थी, 15 रुपीज. टी की प्राइस 10 थी, कॉफी की प्राइस 15 थी, अब ये 12 हो गया. तो पहले कितने डिफरेंस था? 5 रुपीज. एंड अब वो कितना डिफरेंस हो जाएगा? 3 रुपीज. देयर विल बी सम कस्टमर्स वो बोलेंगे चलो 3 रुपए से कुछ नहीं होता, कॉफी लेते. रिलेटिवली कॉफी राइट हैज बिकम चीपर, और वन कैन से रिलेटिवली टी हैज बिकम कॉस्टलियर. आपका देखने का तरीका है. बहुत बार हम कोई कमोडिटी मार्केट में लेने जाते हैं और हमें बोलता है कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल 10,000 का है और 2,000 डालो 12,000 का अच्छा मोबाइल मिल जाएगा, तो हम 2,000 एक्स्ट्रा डाल के लेते हैं. बट अगर वही 4-5 हजार का डिफरेंस रहेगा तो वी विल थिंक. सो बिकॉज योर प्राइस हैज चेंज, द गैप अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ऑब्वियसली दैट विल क्रिएट द डिफरेंस ना. वही तो मैं बोल रहा हूँ, डिमांड इंपैक्ट रहेगी. आगे नेक्स्ट, इसका मतलब ये नहीं कि सब्स्टिट्यूट से ज्यादा ही अपनी प्राइस होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है. राइट, मैं रिलेटिवनेस की बात कर रहा हूं. आगे देन थर्ड इज, आप यहाँ पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, लाइक बॉल पेन वर्सेस इंक पेन. राइट, देयर आर मेनी, लाइक सर्फ एक्सेल वर्सेस टाइड, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन. राइट, आपके मोबाइल्स, right, OnePlus versus some suppose Samsung का कोई मोबाइल. So they are substitute, they are performing same function, and the price of one right impacts its own quantity as well as quantity of the substitute. क्या बोला? Price of one commodity impacts its own demand, at the same time it impacts demand of other commodity. तो यहाँ पे लिखो एक सेंटेंस, change in the price of a commodity. Price of a commodity impacts A own demand, खुद की डिमांड. This is substitution effect plus income effect. प्लस इनकम इफेक्ट. ठीक है, दैट इज प्राइस इफेक्ट. एंड बी डिमांड ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. दिस इज राइट डिटर्मिनेंट. राइट, ये अलग है. ए एंड बी आर टोटली डिफरेंट. यहाँ पे राइट, आई वोंट से प्राइस इफेक्ट. अगर मैं इसको प्राइस इफेक्ट बोलता हूं दैट इज रॉन्ग. अगर मैं प्राइस इफेक्ट बोलता हूं दैट इज टोटली रॉन्ग. इट इज नॉट प्राइस इफेक्ट. मैंने कट किया प्राइस इफेक्ट को, देखो. सो प्राइस इफेक्ट किसके वजह से होता है? खुद के प्राइस की वजह से. अगर मेरी डिमांड मेरे प्राइस की वजह से चेंज हुई, इट इज अ प्राइस इफेक्ट. मेरी डिमांड किसी और के
प्राइस चेंज होने से हुई है, इट इज नॉट प्राइस इफेक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द क्वेश्चन. और बच्चों को वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट यही समझ में नहीं आता है. ऐसे नहीं कि उनको आता नहीं है, बट ये एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है. मेरे प्राइस की वजह से मेरी डिमांड चेंज हो रही है, इट इज द प्राइस इफेक्ट विच इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट. किसी और कमोडिटी की प्राइस चेंज होने की वजह से मेरी डिमांड चेंज होती है, दिस इज नॉट प्राइस इफेक्ट. इट कैन बी बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूट, इट कैन बी बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इसलिए अब थर्ड देखने जा रहे हैं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. Price of complementary goods. What are the complementary goods? These are the goods which are consumed along with other goods to satisfy a single want. They have joint demand. They have which kind of demand? Joint demand. They are demanded jointly to satisfy single want. Joint demand. Complementary goods have joint demand. एग्जाम्पल, अगर मेरे पास प्रिंटर है तो मुझे पेजेस चाहिए, कार्ट्रेज चाहिए, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अगर मेरे पास कार है तो मुझे पेट्रोल डीजल चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अगर मेरे पास मोबाइल है तो उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री आ गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर मेरे पास इंक पेन है तो इंक चाहिए, देन ओनली आई कैन यूज, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो they help you to buy, right? They help you to buy, satisfy single want. सब्स्टिट्यूट में मैंने क्या बोला, दोनों में से एक चाहिए, दोनों नहीं चाहिए. सब्स्टिट्यूट के लिए दोनों में से एक चल जाएगा टू सेटिस्फाई गिवन वांट. कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दोनों तीनों जितने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है सब चाहिए टू सेटिस्फाई दैट वांट. देयर इज डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इसलिए हम जाओ, कभी वेबसाइट पे जाओ, अमेज़न के वेबसाइट पे, कभी आपने कभी ऑब्जर्व किया क्या आपने, जब आप एग्जांपल डालते हो, आपने मोबाइल डाल दिया, वन प्लस मोबाइल, एंड नीचे आता है पीपल आल्सो लुक फॉर सैमसंग, आईफोन, राइट, नोकिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जब आप फर्स्ट टाइम सर्च करते हो, क्या बोल रहा, ध्यान देना, व्हेन यू सर्च फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने मोबाइल डाल दिया, सपोज वन प्लस मोबाइल, तब जो दिखाया जाता है ना वो सब्स्टिट्यूट दिखाते हैं, राइट. दे आर गिविंग अल्टरनेटिव्स. उसमें से आपने फाइनल किया कि मुझे वन प्लस चाहिए और आपने ऐड टू कार्ड कर दिया. एंड जब आप चेकआउट के लिए करोगे, नीचे लिखा जाता है पीपल ऑल्सो बॉट दिस थिंग्स अलॉन्ग विद दिस मोबाइल, स्क्रीन गार्ड, राइट, उसका चार्जर, हेडफोन्स वगैरह. नाउ दे आर गिविंग यू व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. दे आर शोइंग यू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. पहले उन्होंने आपको क्या दिखाए, राइट, सब्स्टिट्यूट दिखाए. मतलब उनमें से एक लेना है आपको. यू वोंट बाय बोथ द मोबाइल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू विल जनरली बाय ए सिंगल मोबाइल, या तो वन प्लस का रहेगा, या सैमसंग का रहेगा, या नोकिया का रहेगा, या कोई दूसरे कंपनी का रहेगा, राइट, एप्पल का रहेगा. वंस यू फाइनलाइज योर प्रोडक्ट, देन यू ऑफर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ये एग्जांपल कहाँ पे नहीं है, ये देख के समझ में आता है. जब आप बाय करते हो कि एक मोबाइल, तो उसके रिलेटेड सब चीजें आना स्टार्ट होता है. लाइक वन प्लस का मोबाइल आपने ऐड टू कार्ड किया, तो वहां पे वन प्लस का ही चार्जर आएगा, वन प्लस के रिलेटेड हेडसेट्स वगैरह आएंगे, तब सैमसंग का नहीं आएगा. दे नो द टेंडेंसी ऑफ द पीपल, एंड वैसे वो बिजनेस करते हैं, दे ट्राई टू सेल मोर. जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, तो पेट्रोल व्हीकल रिलेटेड सब चीजें वहां पे मिलेंगे. या तो पंक्चर का शॉप रहेगा, पंक्चर निकालने के लिए, हवा भरने के लिए, राइट. जब वो हमें पेट्रोल देते हैं, मे बी वो ऑयल वगैरह रहता है, ऑयल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, वो सब चीजें वहां पे रहेंगे. वहां पे टी शर्ट का दुकान नहीं रहेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट अगर आप मॉल में जाते हो, तो आपको रिलेटेड एक शॉप में जाते हो, तो वहां पे आपको उस चीज के रिलेटेड सब चीजें मिलेंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बोल रहा हूँ. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या, कि एक लोगे तो आप दूसरा भी उसके साथ लेते हो, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, राइट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आवर कमोडिटी. कॉपी. देखो क्या रिलेशनशिप होती है, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड
and quantity demanded of my commodity. Is it positive relationship or it is negative relationship? Please tell me, क्या relationship होती है? Right? Example, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है, राइट? पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है, तो पीपल विल प्रेफर फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ध्यान देना, पीपल विल प्रेफर फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड देयरफॉर, राइट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर सब्स्टिट्यूट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई, तो उसके वजह से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी. पीपल विल डिमांड लेस ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एंड दे विल शिफ्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. वही अगर पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन विल बिकम चीपर एंड पीपल विल डिमांड मोर ऑफ व्हीकल एंड लेस ऑफ योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो पेट्रोल की डिमांड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी इंपैक्ट कर रही है एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी कर रही है. इफ यू आर चेकिंग पेट्रोल एंड प्राइवेट, दे आर लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड पेट्रोल एंड पब्लिक, पेट्रोल की डिमांड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को इंपैक्ट कर रही है एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली वो सब्स्टिट्यूट को भी इंपैक्ट कर रही है. सो व्हाट आई मीन, इफ प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेस, price of milk increases, all those sweets which are, right, prepared using milk also increases. Price of petrol increases, cost of private transportation, right, sorry, ये उल्टा होता है, ये मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, मैं डिमांड की बात करनी चाहिए. So price of, suppose, right, price of petrol increases, demand for vehicles will decrease. मैं दोनों प्राइस बोल रहा था, एक प्राइस है दूसरी डिमांड है, ठीक है. If price, petrol prices decreases, demand for vehicles will increase. It is a negative relationship. It is inverse relationship. If I plot these two variables on graph, this is quantity demanded of commodity X and this is price of commodity Y. These are two different commodities. So this is not law of demand. Try to understand. बहुत लोगों को लगता है ऐसी डायग्राम रहेगी तो लॉ ऑफ डिमांड ही रहेगा. नो, लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे उसकी खुद की प्राइस होनी चाहिए. यहाँ पे किसी और की प्राइस है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस है. एंड इफ रिलेशन इज ए निगेटिव, दिस इज द कर्व. डोंट कॉल इट इज अ डिमांड कर्व. दिस इज, अगर आप इसको डिमांड कर्व बोलते हो, आप कंसेप्चुअली रॉन्ग हो. मतलब व्हेन, ओके, व्हेन प्राइस इज, एग्जाम्पल 10 रुपीज, या मैं बोलता हूं व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल is 100 rupees, demand for vehicles is, suppose I will take some odd figure, 2.5 lakhs. कुछ भी लिया मैंने, कुछ भी लिया है, I don't know exact. But if price of the petrol decreases, suppose to 80 rupees, decreases to 80 rupees, demand for private vehicles increases to suppose 3 lakhs. So प्राइस ये 60 रुपीज है. So जब प्राइस डिक्रीज हो गई पेट्रोल की, व्हीकल की डिमांड इंक्रीज हो गई. एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है, निगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा. एंड वही जब प्राइस इंक्रीज है, पेट्रोल 60 में मिलता था, अब 100 में मिल रहा है, तो ओवरऑल डिमांड फॉर द प्राइवेट व्हीकल्स विल डिक्रीज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. So this is important. So can I say this diagram which shows quantity demanded of x-axis, quantity demanded of a commodity X on x-axis and price of commodity Y on y-axis, and there's a negative relationship. So can I say X and Y are complementary goods? अगर ऐसी डायग्राम रहेगी तो they are complementary goods. Their relationship is negative. अब मैं 3 डायग्राम समझा रहा हूं, ध्यान देना. 3 डायग्राम्स. एक,
देखते हैं. This is quantity demanded of x, quantity demanded of x, quantity demanded of x. Price, price, price. But price किसकी? ये मेरा क्वेश्चन है. Price of x, price of y, price of y. So this is law of demand. इसको हम डिमांड कर्व बोलेंगे. डिमांड कर्व ऑफ x. This is demand curve. And generally it is negative, downward sloping. The relation between the price of the commodity and its quantity demanded is inverse, negative price effect. If this curve is upward sloping, so price of some other commodity and quantity demanded of some other commodity have positive relationship. मतलब इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो इसकी डिमांड इंक्रीज होगी. अगर इसकी प्राइस कम हो जाएगी तो इसकी डिमांड डिक्रीज होगी. एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी, दूसरी की डिमांड इंक्रीज होगी. तो दोस टू कमोडिटीज आर सब्स्टिट्यूट्स. दिस इज सब्स्टिट्यूट्स. एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट्स. वाई आर सब्स्टिट्यूट्स. एंड यहां पे इफ देयर इज ए डिमांड कर्व लाइक कर्व, डिमांड कर्व लाइक, इट इज नॉट ए डिमांड कर्व. डिमांड कर्व के लिए वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्स होनी चाहिए, यहां पे प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई है. सो इसका मतलब क्या? इसका मतलब जब y की प्राइस इंक्रीज होती है तो x की डिमांड डिक्रीज होती है, एंड जब y की प्राइस डिक्रीज होती है तो इसकी प्राइस, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है. लाइक दैट. सो इट इज द कर्व ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. x and y are complementary goods. Complementary goods. I think ये क्लियर रहेगा. The three different diagrams and उनका impact. Now, as right, we have right inverse relationship between price of the complementary goods and quantity demanded of a commodity. I will say the cross elasticity. Cross elasticity between them is negative. Cross elasticity is a quantity of x and price of y का impact. If price of y changes, how much quantity demanded of x changes is a cross elasticity. समझ में आ रहा है? Cross goods, complementary goods and substitutes are called as cross goods. Complementary goods and substitutes are called as cross goods. उनकी elasticity is a cross elasticity, and that elasticity is negative. मैं elasticity में एक word, एक sentence लिख लेना, just for your information. If goods are complementary, if two goods are complementary, their elasticity, cross elasticity is a negative. क्या बोला मैंने? If two goods are complementary, their cross elasticity is a negative. However, if cross elasticity is a negative, does not make those goods complementary. I will teach this sentence, right? इसका मतलब in elasticity chapter. मतलब अगर दो गुड्स है और उनकी इलास्टिसिटी निगेटिव है, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव ही होगी. बट दो गुड्स के बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव है, डज नॉट मेक देम ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. वो क्यों, कैसे, वो मैं वहां पे प्रूव करूंगा. जस्ट अभी मैं यहाँ पे बोल रहा था. अच्छा, सेंटेंस इज इफ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, their cross elasticity is always negative. If goods are complementary, their cross elasticity is always negative. However, if cross elasticity is a negative, does not make those goods complementary. Example, सर आप बोलोगे सर आपने इसे क्या बोल दिया. दो, एक बॉय एंड गर्ल है, दे आर गुड फ्रेंड्स.
तो आप हमेशा ऐसे बोलोगे इनका कुछ चल रहा है चक्कर, या दे आर इन रिलेशनशिप, नॉट नेसेसरीली. बट इफ two people are in relationship, they are like friends, they are friends, but two friends may not be in relationship. मैं ऐसे बोल सकता कि एक कपल है, वो कपल है तो फ्रेंड भी है, बट एवरी फ्रेंड्स और एवरी दो बंदे दो फ्रेंड्स हैं नीड नॉट बी कपल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑन सिमिलर बेसिस में बोल रहा हूं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव रहती है बिकॉज उनका रिलेशन नेगेटिव रहता है. प्राइस ऑफ वन गुड एंड क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड रिलेशन नेगेटिव है, तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी. बट क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब वो गुड्स हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, ऐसे नेसेसरी नहीं है. ट्रू और फॉल्स के लिए बहुत बार पूछते हैं. ठीक है, आगे, और वो हम डिटेल में सीखेंगे, फॉर्मूला एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट, आगे एक और चीज है, whenever we say complementary goods, उनमें से एक प्रोडक्ट डोमिनेंट होता है, that is main product, and another product is secondary to the main product. Sir, what do you mean by that? Example, मेरे पास पेट्रोल है इसलिए मैं व्हीकल लूंगा, या मेरे पास व्हीकल है इसलिए पेट्रोल लूंगा. क्या करोगे? मैं आई एम ए रैशनल पर्सन, मेरे पास गाड़ी है इसलिए मैं पेट्रोल डिमांड करूंगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरे पास गाड़ी है इसलिए मैं पेट्रोल लेता हूं, ना कि मेरे पास पेट्रोल है इसलिए मैं गाड़ी परचेस करता हूं. सो पेट्रोल एंड कार, पेट्रोल एंड व्हीकल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बट उसमें से विच इज अ ड्राइविंग फोर्स? बेसिकली व्हीकल इज अ ड्राइविंग फोर्स, मेन प्रोडक्ट इज अ व्हीकल. मेरे पास पेजेस है इसलिए प्रिंटर नहीं लेता मैं, मेरे पास प्रिंटर है इसलिए मैं पेजेस डिमांड करता हूं. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, बट उसमें से डोमिनेंट प्रोडक्ट कौन सा है? प्रिंटर, एंड पेजेस इज अ सेकेंडरी, राइट, और ऑफ लेस इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू द मेन प्रोडक्ट. सो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करता हूं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि मेन प्रोडक्ट drives the demand of another product. Main product drives the demand for the another product. आगे, so अभी तक हमने 3 डिटरमिनेंट देखे. प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसमें मैंने बहुत डिस्कशन किया बिकॉज दैट इज अ प्राइस इफेक्ट. सेकंड मैंने देखा प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड दिस इज देयर द 3 डायग्राम्स दैट आई डिराइव्ड फ्रॉम दैट. ठीक है, आगे देखते हैं. Then income, this is very important. Income of individual. Income of individual is also deciding factor of for a demand for that, right, demand of that individual. And we know, try to understand, generally income and quantity demanded of a commodity X, is it positive relationship and negative relationship? What do you think? Chalo ping karo answer. Is it positive or negative? Please. It is a positive. Is it always positive? Is it always positive? Is it always positive? No, right. और इनकम से आई डिवाइड, इनकम जो एक डिटरमिनेंट है ना, उसके बेसिस में मैं प्रोडक्ट्स को डिवाइड करता हूं. ध्यान देना, गुड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बाय टेकिंग, राइट, बेस ऑफ इनकम. जनरली बोल रहा हूं, जनरली. इफ इनकम इंक्रीजेस योर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परचेस, अगर आपकी ओवरऑल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम ही इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी. अगर मेरी सैलरी एग्जांपल 1 लाख है पर मंथ, ठीक है, 1 लाख पर मंथ है, कल जाके मेरी सैलरी 1,50,000 पर मंथ होती है एग्जांपल, तो ऑब्वियसली my purchasing power will increase, obviously has to, because now I can buy more of the commodity. But generally purchasing power is related to price of the product. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंज होता है, इसलिए आई कैन बाय मोर और लेस ऑफ द कम्युनिटी, उसको परचेसिंग पावर बोलते हैं. जब मैंने कल एग्जांपल दिया, विथ 1 rupee आई यूज्ड टू बाय 4 chocolates, and with the same 1 rupee I can buy 1 chocolate. It is actually the purchasing power. If my income increases, 1 लाख मेरी इनकम थी, अब 1,50,000 my income है, तो obviously I can demand more.
एंड एक्चुअली आई विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर न्यू कमोडिटीज एट द सेम टाइम. ऐसे कमोडिटीज जो पहले डिमांड नहीं करता था वो भी मैं डिमांड करना स्टार्ट करूंगा. सो जनरली as income increases, my demand for the commodities also increases, or if my income decreases, demand for commodity also decreases, right? That is, right, I will say there is a positive relation between income of the individual and the quantity demanded of a commodity. दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. नाउ आजकल आप देख रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं. लॉकडाउन में, राइट, एवरीवन, मतलब जो अभी बात चल रही है कि रियल एस्टेट इज एट ऑलरेडी डाउन पे चल रहा था, एंड लॉकडाउन हैज, राइट, हैम्पर्ड इट ए लॉट. उसके वजह से रियल एस्टेट में एक फ्लैट के प्राइस मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं पुणे में मिनिमम 10 लाख कम हो जाएंगे, मिनिमम 10 लाख. एंड यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट. रीजन, ओवरऑल इनकम ऑफ द सोसाइटी हैज डिक्रीज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड देयरफॉर डिमांड फॉर, राइट, फ्लैट्स विल आल्सो डिक्रीज. वही मे बी 2-3 साल के बाद फिर सब चीजें ठीक से हो जाएगी, इनकम लेवल इंक्रीज हो जाएगी, द प्राइसेस ऑफ फ्लैट्स विल आल्सो इंक्रीज. जो अभी हम डिस्काउंट मांग सकते हैं या वो आपको खुद होके डिस्काउंट देंगे बिल्डर्स, वो बाद में नहीं देंगे, बिकॉज दे हैव टू आल्सो सेल देयर इन्वेंटरी. बन के रखा है लेकिन कोई अब डिमांड नहीं है. आई वाज टॉकिंग विथ माय फ्रेंड एचडीएफसी से आज, एक्चुअली व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम सदाशिव पेट प्रिंटिंग के लिए, तो मुझे शिवाजी नगर से आना पड़ा, थोड़ा घूम के आना पड़ा मुझे, क्योंकि बीच वाला पूरा बंद है. तो वहां पे जैसे मैं, शिवाजी नगर पे एचडीएफसी बैंक है और वहां पे मैं पहले जॉब करता था, तो वहां से मैं गुजर रहा था, तो एक मेरा फ्रेंड जो मेरा कलीग था वो तब भी गेट से बाहर आया. तो 5 मिनट हमने बात की, बोल रहा प्रसाद फाइल्स ही नहीं है. फाइल्स नहीं मतलब लोन के लिए एप्लीकेशन ही इतने डिक्रीज हो चुके हैं कि काम ही नहीं ऑलमोस्ट. एंड एचडीएफसी लीडिंग बैंक, तो वो बोल रहा है बहुत कम हो चुका है फाइल्स. पहले हम कितना मारते थे, अभी कुछ भी नहीं है, टारगेट बहुत कम हो चुके हैं. टारगेट ऑब्वियसली ज्यादा है बट फाइल्स इनफ्लो नहीं है. So now the overall income has decreased. Demand for loan has also decreased. Demand for loan has also decreased. Demand for flats is also decreased. Demand for the consumer goods is also decreased. Obviously. However, try to understand. I'm talking about these goods are a normal goods. What do you mean by normal goods? Which shows positive relationship between income and its demand. अभी मैं उस पे आने वाला हूँ, ध्यान देना. Generally, there is a positive, right, direct relation between the income of the individual and the quantity demanded. If I plot it on graph, ध्यान देना. If I plot it on a graph, this is quantity demanded of a commodity X, and this is, right, income of the individual. Generally, at a higher income, demand is also more. If income is more, demand is also more. If income is less, demand is also less, like this. So can I say there is a positive relationship between income of the individual and quantity demanded? So यहाँ पे try to understand, relation is a positive. ध्यान देना, relation is positive, and therefore they are normal goods. They are normal goods. Again, normal goods are also two types. Normal goods are of two types. So income, ध्यान देना मैं लिख रहा हूं, income effect अलग and income determinant अलग. Income effect is because of change in the price of the commodity. Income remains same. Purchasing power change होती है. That is income effect. And यहाँ पे your overall income changes, maybe increases or decreases. Because of income of individual helps you to bifurcate the goods. You can say goods, commodities and services, right? Goods नहीं, ये services के लिए भी law applicable होता है obviously. Like
So basically, first category is of a normal goods. Income helps you to divide the goods into two categories. Normal goods, this is first. मतलब वो goods जिनकी income, जिनकी demand हम income increase होने पे increase होती है, जिनकी demand decrease होती है when income decreases. Normal goods. मतलब as you become rich and rich and rich, you demand more and more and more. As you become poor and poor and poor, you demand less and less and less. That is normal goods. And दूसरे होते हैं ऐसे goods जहां पे as you become rich, you buy less of that, and as you become poor, you buy more of that. Example, उन goods को क्या बोलते हैं? I want answer from you. ऐसे goods जिनके केस में as you become rich and rich and rich, your income increases, you buy less and less of that. There is a negative relationship between income and the demand. उन goods को क्या बोलते हैं? Perfect. They are called as inferior goods. Inferior goods. Perfect. They are called as inferior goods. So income helps you to divide goods into two categories. Normal goods and inferior goods. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. This is very important for me. यहाँ पे income and demand सेम मैं यहाँ पे लिखता हूं और फिर मुझे उसकी डायग्राम भी निकालनी है. डायग्राम पे बहुत फोकस होना चाहिए फाउंडेशन में, मैं बोलता हूं, because it is more about the interpretation. Income increases. As you become rich, you buy more of that. As you become poor, you buy less of that. Direct. And यहाँ पे as you become rich or your income increases, you buy less of that. And as your income decreases, or if your income is less, you buy more of that. There is an inverse relationship. So यहाँ पे now I am going to plot a graph. This is quantity demanded of a commodity X. This is income of the individual. When income is less, demand is more. Demand is more. Try to understand. When income is more or high, demand is less. This is another point. If I plot this A and B, this is the curve that I get. This is the curve that I get. So this is not demand curve. फिर मैं बोल रहा हूं because यहाँ पे y axis पे price of x नहीं है, income है. तो आपको अब डिमांड के आगे सोचना है. As income increases, देखो, as income increases, you buy less of the commodity. On contrary, as income decreases, you buy more of the commodity. Are you getting my point or no? समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? This is income level 1. This is income level 1. इस लेवल से जब आप इनकम इंक्रीज होती है, देखो जब इनकम लेवल इतनी थी, आप इतनी डिमांड करते थे, बट जब इनकम इंक्रीज हो गई, यू आर डिमांडिंग ओनली लेस. इनवर्स रिलेशनशिप है. तो कैन आई से एक्स इज इंफीरियर कमोडिटी? इज ए इंफीरियर कमोडिटी. ये ग्राफ किसका है? इंफीरियर कमोडिटी का ग्राफ है. ये ग्राफ कौन से कमोडिटी का है? इंफीरियर कमोडिटी का है. इसका मतलब सर नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव डायग्राम रहेगी, पॉजिटिव स्लोप वाला रहेगा. यस. हाउएवर, डू यू बिलीव वन थिंग कि हमेशा ऐसे होता है कि एज यू बिकम मोर एंड मोर वेल्दी, मोर एंड मोर रिच, यू बाय एवरीथिंग मोर, या आई विल से जिस परसेंटेज से आपकी इनकम इंक्रीज होती है कि डिमांड भी उतने से इंक्रीज होती है. लाइक एग्जांपल,
if you are living in hostel, because I live in hostel since my 6th, जब मैं यहाँ पे पुणे में आ गया या जब मैं आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, तब मेरा क्यों स्टाइपेंड कुछ तो तब बहुत था, 2000 मतलब बहुत हो गया पर मंथ. तो उस स्टाइपेंड में राइट मैं एक नॉर्मल मेस में जाता था. मेरा फिर सेकंड ईयर में स्टाइपेंड इंक्रीज होगा, सपोज 3000 हो गया, मैंने एक बेटर मेस देख ली, तो सपोज मेरा मंथली तब कुछ तो 1200 था, मंथली 1200 था 2 टाइम. आज वो पॉसिबल नहीं है कहाँ पे भी, प्राइजेस ऑफ इंक्रीज मैनीफोल्ड्स. फिर सेकंड ईयर में फिर मैंने 1500 की मेस लगाई आईएलएस कॉलेज की, वहां पे जाते थे हम लोग बिकॉज वहां पे और अच्छा मिलता था. थर्ड ईयर में मेरी थोड़ी और अच्छा स्टाइपेंड बन गया, तो मैं बादशाही वगैरह बोल के पुणे में और अच्छे मेसे से वहां पे जाना स्टार्ट कर दिया. वहां पे 1800 वगैरह मेरा मंथली था. सो एक 1200 की मंथली मेस, 1500 की मंथली मेस एंड 1800 की मंथली मेस. माय स्टाइपेंड वाज इंक्रीजिंग ऑलमोस्ट डबल, बट माय एक्सपेंडिचर was not increasing by double, it was increasing by less than double. So भले ही मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, माय डिमांड इज इंक्रीजिंग बट नॉट राइट मोर देन इंक्रीज इन द इनकम. मेरी इनकम 100% से इंक्रीज हो रही है, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी increases by maybe 20%, 30%, not to the extent increase in the income. On the contrary, right, my demand for other things like luxury items started increasing many folds. So ऐसे गुड्स होते हैं कि जैसे मैं रीच होता हूं तो मैं ऑब्वियसली आई विल इंक्रीज द डिमांड, बट आप कितना खर्चा करते हो, पहले से ज्यादा करते हो, बट कितने परसेंट से ज्यादा करते हो, जितने से इनकम इंक्रीज हो रही है पूरा का पूरा आप उस पे डाल रहे हो क्या? नहीं. यू आर सेविंग सम एंड यू आर बाइंग सम लग्जरी आइटम्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. So normal goods are also of two types. One are necessities and others are luxury items. So normal goods exhibits positive relation between income and demand. इनकम एंड डिमांड में वो पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाते हैं, इसलिए इनके केस में इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है. इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है. And inferior goods exhibits negative relationship and therefore inferior goods के केस में income elasticity negative होती है. So goods having negative income elasticity are inferior goods. Negative income elasticity मतलब income increase होगी, demand decrease हो रही है, income decrease हो रही है, demand increase हो रही है. They are inferior goods. And पॉजिटिव इलास्टिसिटी मतलब इनकम इंक्रीज होने पे डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज होने पे डिमांड, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. दे आर नॉर्मल गुड्स. सो नॉर्मल गुड्स हैव व्हिच इनकम इलास्टिसिटी? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी. सो वन अनदर क्वेश्चन, राइट, डैश डैश गुड्स have positive income elasticity, normal goods have positive income elasticity. उस चैप्टर में हम और करेंगे, डोंट वरी, बट मैं अभी रिलेट कर रहा हूं बिकॉज यू नो ऑल दोस टर्म्स, कभी ना कभी आपने पढ़े हैं. I'm trying to correlate the things. Then इसमें so can I divide normal goods into two? या आप इनको ऐसे देखो, मैं जानबूझ के डायग्राम निकालता हूं. This is income, this is quantity demanded of commodity X. When my income is more, my demand is also more. When my income is less, my demand is less. So the relation between the income and the demand for a commodity is a positive. So can I say, right, can I say therefore X is a normal good? Yes. नॉर्मल गुड और नॉर्मल कमोडिटी, जो भी बोलना है बोलो. सो इंफीरियर गुड्स की डायग्राम आपके राइट हैंड साइड पे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्मल गुड की डायग्राम है. एंड इंफीरियर नॉर्मल कौन डिसाइड करता है? प्राइस नहीं, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड देयरफॉर अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. 12th में यू लर्न inferior good is an exception to law of demand. Wrong.
Inferior good is not exception to law of demand. Giffen's goods are exception to law of demand. Inferior goods and Giffen's good are different. वो मैं समझाऊंगा. Try to understand. दोनों different होते हैं. Giffen's good is a exception to law of demand. Inferior goods is not exception to law of demand. Inferior goods are a determinant of law of demand. Exception अलग है, determinant अलग. Because Giffen's good किसके वजह से बनते हैं? इनकम की वजह से बनते हैं, प्राइस की वजह से नहीं. और जब मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करता हूं तो मैं प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन देखता हूं. एंड जब मैं इनकम की बात कर रहा हूं, मैं इंफीरियर गुड्स की बात कर रहा हूं, मैं इनकम एंड डिमांड की बात कर रहा हूं. मैं कहां पे लॉ ऑफ डिमांड बात कर रहा हूं? जब मैं इंफीरियर गुड्स की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एंड द डिमांड फॉर ए कमोडिटी. मैं लॉ ऑफ डिमांड है ही नहीं. लॉ ऑफ डिमांड के लिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिमांड होनी चाहिए. यहाँ पे डिमांड एंड इनकम की बात चल रही है. Therefore, कहां पे तो ऊपर लिख के रखना, inferior goods is not exception to law of demand. ये बहुत लोगों को लगता है कि inferior goods से exception to law of demand. 12th में हमने wrong सीखा था. Giffen's good is a exception to law of demand. कल मैं Giffen's goods and inferior goods का actual difference समझाऊंगा. So next, अब ध्यान देना. This will be the last point. मैं यहां पे खत्म करूंगा, ध्यान देना. I divide. So मैंने बोला गुड्स को हमने दो में डिवाइड किया अभी तक. गुड्स, एक नॉर्मल गुड्स having positive income elasticity, positive relationship between income and its demand, and inferior goods which exhibits negative relation between income and quantity demanded, negative income elasticity. ठीक है. आगे, normal goods are also classified into two categories. First category is luxury goods, या पहले मैं नेसेसिटी बोलता हूं, और necessary goods, necessities or necessary goods. They are normal because as our expenditure increases, as our income increases, we spend more on our necessities. सबसे पहले हमारी क्या रहती है? What is our first priority? Necessities complete करना, और उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो हम लग्जरीज पे जाते हैं. मे बी आपके केस में उल्टा हो सकता है, बट चेक योर पेरेंट्स. पहले वो उनके लिए नेसेसिटी क्या है? आपका एजुकेशन, आपके घर का खर्चा, दैट इज नेसेसिटी. पहले वो सेटिस्फाई करेंगे और बाद में बाकी चीजें देखेंगे. आपका वैसे नहीं हो सकता बिकॉज जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रहा है. बट जनरली एज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग योर ओन इनकम, अभी तो आपकी इनकम नहीं, आप किसी के इनकम पे जी रहे हो. जब आप खुद इनकम अर्न करना स्टार्ट करोगे, at that point of time you will understand first priority is the necessities and latter priority the luxury. फिर मजे मारेंगे. So try to understand. जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली अभी एग्जांपल में 1 BHK फ्लैट में रहता हूं, सपोज रेंट पे रहता हूं. मेरी इनकम इंक्रीज होने पे मैं अच्छे सोसाइटी में, अच्छे लोकेलिटी में शिफ्ट हो जाऊंगा 1 BHK में. सपोज और इनकम इंक्रीज हो गई, मैं भी और अच्छे सोसाइटी में, मैं 2 BHK में शिफ्ट हो जाऊंगा. My demand for necessity है, but my demand is increasing. Maybe और income increase होने पे मैं मेरा फ्लैट ले लूंगा. समझ में आ रहा है? As my income increases, demand for necessities also increases, but not to the extent of increase in income. Increase जितने से increase होती है, 10 income 20% increase हो गई, demand for necessities will increase by example 2%, 3%, 4%, not more than increase in the income. So necessities are, I will say, normal goods, and उनके केस में लिख लेना income elasticity is less than 1. Less than 1. Goods having less than 1 income elasticity are necessities. मैं यहाँ पे elasticity को जानबूझ के मिक्स कर रहा हूं. Don't get afraid, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे हर चीज समझ में आएगी. Why less than 1? Because मेरी इनकम 20% से इंक्रीज हो गई and demand for necessities increased just by 10%. So 10% upon 20%, it is 0.5, less than 1. समझ में आ रहा है? And
दूसरे होते हैं लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स, कंफर्ट्स, कंफर्ट्स भी बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ठीक है। देयर इनकम इलास्टिसिटी is more than one, is more than one. The goods having more than one income elasticity is luxuries. मैं क्या बोल रहा था ना, goods having negative income elasticity are inferior goods. यहां पे कॉपी करता हूं, negative. Goods having positive income elasticity, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। हाँ, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी आर कॉल्ड एज नॉर्मल गुड्स। उसमें भी पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन जीरो, 0 to 1, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। ईवाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, यू नो, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, नेसेसिटीज के केस में, एंड लग्जरी गुड्स के केस में, राइट, इट इज ग्रेटर देन वन, it is greater than, it can be anything, it is greater than 1, income elasticity is greater than 1. So अब ध्यान देना, मैं यहां पे डायग्राम निकालने वाला हूं, दैट इज माय लास्ट पॉइंट फॉर द डे। सो मैं लग्जरी गुड्स की एंड नेसेसिटी गुड्स की डायग्राम निकालने जा रहा हूं, ध्यान देना। ध्यान देना, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, एंड दिस इज इनकम एक्सेस। एज यू बिकम रिच, मे बी आप सादा नमक से टाटा सॉल्ट पे शिफ्ट हो जाओगे, टाटा नमक पे, उससे ज्यादा क्या परचेस करोगे रे आप? नेसेसिटीज सेटिस्फाई होने के बाद आप उससे बेटर नमक तो मुझे नहीं पता। एग्जाम्पल, इवन अनिल अंबानी अगर इंडिया में लिया जाता है, वो बेस्ट से बेस्ट, सपोज सबसे महंगा मोबाइल शायद एप्पल का है, कुछ तो 1 लाख जो भी रेंज में आता होगा, उसके पास भी वो मोबाइल है, सपोज मेरे पास भी वही मोबाइल है, उससे ज्यादा क्या रहेगा रे? एक लेवल तक आप खर्चे भी कर सकते हो, बट एक लेवल तक खर्चे कर सकते हो, उसके बेटर कम्युनिटी नहीं है, तो एट दैट लेवल वी आर एट पार, एट दैट लेवल बोल रहा हूं उस प्रोडक्ट के लिए। सो इनकम इलास्टिसिटी का ध्यान देना, मैं निकाल रहा हूं, माई इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, लाइक दिस। मैं नेसेसिटीज की डायग्राम निकाल रहा हूं, मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। However, after certain point of time, it becomes flatter. This becomes flatter and parallel to which axis? Y axis. मतलब ध्यान देना, जब मेरी इनकम इतनी थी तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी। सो दिस इज सपोज I1, दिस इज Q1, माय इनकम इंक्रीजेस, आई स्टार्टेड बाइंग मोर एंड मोर ऑफ नेसेसिटीज, डिमांड देखो इंक्रीज हो गई। देयर आफ्टर my income again increases, I3. However, you can see my demand is something, इसको कैसे थोड़ा ठीक से निकालता हूं, और एक सेकंड ना, ध्यान देना, मुझे ऊपर जाके इसको फ्लैट करना है, इसको मुझे ऐसे फ्लैट करना है, ठीक है। सो यहां पे ध्यान देना, माय इनकम इंक्रीजेस, सो दिस इज माय न्यू इनकम, डिमांड इंक्रीज हो गई, यस गुड, डिमांड इंक्रीज हो गई, Q3 हो गई, फिर मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, स्टिल आई एम बाइंग द सेम,
मेरी डिमांड उतनी है. सो I3 एंड I4 पे देखो, I3 एंड I4 पे मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, बट क्वांटिटी डिमांडेड एट I3 इनकम इज Q3, एट I4 income is also Q3. So it becomes flatter and becomes parallel to which axis? Y axis. So this becomes parallel to Y axis, income axis. Generally Y axis नहीं बोलते, quantity axis and income axis ऐसे wording use करते. So this is diagram of necessities. So I can say X is necessity. Commodity X or service X is a necessity. Because जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होगी, I will buy more and more of that, but after certain level of income I won't buy more than that. मैं बहुत कमा रहा हूं, मैं 2 बार खाना खाऊंगा, 3 बार खाऊंगा, 4 बार खाऊंगा, बट क्या 10 बार खाऊंगा क्या रे? मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो माय डिमांड फॉर मील विल इंक्रीज, श्योरली विल इंक्रीज, बट मैं 2-3 से ज्यादा बार नहीं खाऊंगा. मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है इसलिए मैं नमक डाल रहा हूँ, नमक डाल रहा हूँ, या नमक के बैग्स परचेस करो, ऐसे तो नहीं होगा ना. इनिशियली मे बी डिमांड इंक्रीज होगी, बट लेटर इट विल बिकम फ्लैट. इवन आई एम बिकमिंग रिचर, आई वोंट बाय मोर, मेरी डिमांड उतनी ही रहेगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयरफॉर इनिशियली पॉजिटिव स्लोप है, एंड लेटर इट बिकम्स फ्लैट पैरेलल टू income axis, Y axis, and this is a diagram of necessity goods. And on contrary, luxury goods के केस में there is no end. Income increase होगी, you will buy more like that. It does not become parallel to Y axis. This is in that case, like this is my first income I1. This was my quantity demanded Q1. My income increases to I2. Demand also increases to Q2. My income increases, demand increases, it does not become constant. ये flat होती नहीं. ऐसे cases में I will say X is, right, luxury goods or comfort. Like this. तो ये आ गया आपका नेसेसिटी गुड्स की डायग्राम, ये आ गई आपकी लग्जरी गुड्स की डायग्राम, और ये आ गई आपकी इंफीरियर गुड्स की डायग्राम. एंड मैं यहां पे लिखता हूं, जानबूझ के यहां पे लिख रहा हूं, नॉट इक्वल टू गिफन्स गुड. सर रॉबर्ट गिफन ने जो बोला था आपके 12th महाराष्ट्र बोर्ड में गलत बोला था आप लोगों को. इट इज डिफरेंट. ठीक है, क्लियर है? If anyone has doubt, please ask me before I end today's lecture. ठीक है, क्लियर है? So, and diagrams are very important. डायग्राम देख के क्लिक होना चाहिए. Like this. If I have questions, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ. Just hold on. मैंने ओपन करके रखे थे इको के कोई क्वेश्चंस. 1 मिनट, मैंने स्क्रीन पे आ जाएंगे आपके, 1 सेकंड खाली. So I was going through questions only. शायद आपके स्क्रीन पे दिखेगा. I can show you diagram. Very important, very important. ये जो मैं प्रिंटिंग के लिए दिया ना आज, वो उस पे ही मेरा काम चल रहा था. देखो, नाउ एग्जाम्पल देखो, ये डायग्राम है. क्वेश्चन नंबर 67. दिस इज अ डायग्राम. एक्स एक्सिस है क्वांटिटी, वाई एक्सिस है इनकम. सो इट इज नॉट डिमांड कर्व. दूसरा, इन द बिलो फिगर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67, RS पार्ट, RS मतलब ये वाला पार्ट. आई थिंक मेरा कर्सर दिखता होगा आपको. ये वाला पार्ट RS, ये वाला पार्ट दिखता है क्या मेरा कर्सर आपको? अगर है तो यस पिंग करो प्लीज, क्योंकि आई डोंट नो मेरा कर्सर नहीं दिखता है क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, सॉरी यार, मुझे, मैं अभी तक इतने दिन से बोल रहा था कि कर्सर दिखता है, कर्सर दिखता है. नो प्रॉब्लम. ठीक है. सो ये जो RS पार्ट है ना, अपर पार्ट ऐसे जाके फ्लैट हुआ है, देखो. ठीक है, मतलब क्या, आपकी इनकम तो इंक्रीज हो रही है,
हाउएवर पहले डिमांड इंक्रीज हो गई, यस, और बाद में डिमांड डिक्रीज हो गई. सो दैट इज इंफीरियर गुड्स. एग्जांपल मैं बोलता हूं, जब तक एक लेवल नहीं आती तब तक आप वो गुड्स डिमांड करते रहते हो और बाद में आप उसको कम करते हो. या आप ये जो इंफीरियर गुड्स की डायग्राम है, राइट, मैंने कमोडिटी, क्वांटिटी एंड इनकम को लेके मैंने दिखाया है. तो एक्चुअली देखा जाए तो इसकी डायग्राम और एक्यूरेटली ऐसे हो सकती है. मैं जब कल गिब्सन्स गुड की एग्जांपल दूंगा तो मैं उसमें ये डिस्कस करने वाला था, लाइक दिस. बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर, याद है ना, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर, लाइक दैट. उसमें से मैंने ये पार्ट बोला था निगेटिव वाला, ये वाला निगेटिव, ये वाला पार्ट. तो जनरली क्या होता है, एज वी बिकम रिच वी बाय मोर एंड मोर, बट एक लेवल के बाद वी गिव अप दैट कमोडिटी एंड वी सब्स्टिट्यूट बेटर कमोडिटी. सॉरी, ये वाला पार्ट मैंने आपको ये वाला पार्ट समझाया था, ये वाला पार्ट. बट इनिशियली बिफोर यू एक्चुअली कॉल ए कमोडिटी इंफीरियर, पहले आप रीच होनी चाहिए उतना एज कंपेयर टू दैट कमोडिटी. अच्छा, एक और चीज, लास्ट 2 minutes एंड आई विल वाउंड अप, ध्यान देना प्लीज, होल्ड ऑन. इज मैं आपको एग्जांपल देता हूं. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज लिविंग इन बीएमसीसी हॉस्टल एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज्ड टू गो टू लाइक विजय थिएटर. ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे हम मूवी देखने जाते थे. जो भी नई मूवी आती थी हम देखने जाते थे. 20-30 रुपीज में मूवी मिलती थी, राइट. वो थिएटर, राइट, मतलब वहां पे लड़कियां नहीं आ सकती थी, ऐसे थिएटर था. सब बॉयज, हॉस्टलाइट जनरली. कोई भी बॉलीवुड की मूवी आती थी हम देखने जाते थे फ्राइडे इवनिंग. मुझे आज भी याद है, ऑलमोस्ट मैंने उस टाइम सब मूवीज देखे, मतलब जो जो मूवी आई तब मैं देखता था. सब हॉस्टल के फ्रेंड के साथ जाता था. अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. तब I was watching movies in the Vijay Theatre and later on when I started earning I shifted to Inox. कैम के बाजू में, अपने बाजू वाले बिल्डिंग में Inox थिएटर है, पीछे वाले बिल्डिंग में. Now my demand for movies is not decrease. To be very frank, obviously it is decrease, right. मैं अभी इतना थिएटर में नहीं जाता जितना पहले जाता था, but to be, मैं अगर मुझे कंपेयर करना है तो as such my demand for movies has not decreased, but demand for Vijay Theatre has decreased. So for me, Vijay Theatre is an inferior and Inox is a superior. On contrary, there will be some people who still find Vijay Theatre suitable. उनके लिए वो inferior नहीं है, वो मेरे लिए inferior है. So inferior commodity, जब मैं inferior commodity की बात करता हूँ, that can be inferior for me, but not inferior to you. जो commodity आपके लिए inferior है, not necessarily inferior for me. अनिल अंबानी के लिए मे बी, राइट, एक आधी चीज बहुत नॉर्मल रहेगी, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी हो सकती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो उसके लिए जो इंफीरियर रहेगी, इसका मतलब मेरे लिए इंफीरियर रहेगी ऐसे नहीं. दैट डिपेंड्स ऑन योर इनकम एज, राइट. सो अगर मेरी इनकम कम है तो जो बाकी लोगों के लिए इंफीरियर है वो मेरे लिए सुपीरियर कम्युनिटी हो सकती है. तो जब भी मैं इंफीरियर कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, इट इज इंडिविजुअलिस्टिक, इट इज नॉट जनरल. जनरली that is not inferior, person to person change hota hai. This is one point to be. Inferior goods is a subjective term, changes from person to person, time to time. Try to understand. It is not universal कि inferior बोला तो सबके लिए inferior, not at all. Changes from person to person, this is one thing, time to time. Second important thing, my demand for movies never decrease. So demand for movies is a positive only, but demand for Vijay Theatre is a negative. समझ में आ रहा है? If I am comparing, right, income elasticity with Vijay Theatre negative है, but income elasticity with movie positive है. Try to understand. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, इतने माइन्यूट बेसिस पे चलते हैं वो लोग. So inferior commodity is a subjective term, changes from person to person and place to place, time to time. वही अगर मैं मेरे विलेज में जाता हूं एंड सेम थिएटर वहां पे डालता हूं, एक ही थिएटर है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए नहीं है कि क्या इंफीरियर है क्या सुपीरियर है. इंफीरियर तभी बनता है जब देयर इज अ सुपीरियर. इफ ए कमोडिटी डज नॉट हैव सब्स्टिट्यूट, हाउ कैन यू से इट इज इंफीरियर? How can you say it is inferior? Try to understand.
एंड दिस इज अ बेस ऑफ ए डिफरेंस बिटवीन गिफन्स गुड एंड इंफीरियर गुड, जो मैं कल डिस्कस करूंगा. मैंने एक सेंटेंस यूज किया, ऐसे कमोडिटीज जिनको सब्स्टिट्यूट है वो इंफीरियर या सुपीरियर हो सकती है, जिनका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है उनके लिए कौन सा इंफीरियर कौन सा सुपीरियर, एंड दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट गिफन्स गुड and inferior goods. Inferior goods have substitutes, giffen's goods have no substitute, and इसलिए राइट हम उनको inferior नहीं किसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, और कल हम इस पे आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर. आई विल बी अपलोडिंग ऑल द लेक्चर्स टिल नाउ. राइट, आपको 9 बजे तक सब लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे. आई विल बी शेयरिंग ऑल द नोट्स, जो भी मैंने अभी इको का लिख के दिया है, अकाउंट्स का लिख के दिया है, वो सब मैं आपको थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा. Thank you.